تو ہم نے کل جو ہے وہ آپ کے سامنے غالباً 3 باتیں رکھی تھی، ایک بات اور رکھ کر کے پھر دوسری بات کرتے ہیں۔ میرے بچپن کا زمانہ تھا کہ ویتنام میں لڑائی ہوئی تھی، میں ہوش و حواس پہ تھا، 8ویں 9ویں میں پڑھتا رہوں گا۔ تو اتنے مرد مار دیے گئے کہ عورتیں بے شمار بیوہ ہو گئیں۔ اب دوسری شادی کا کسی کے پاس کوئی بھی نہ قانونی اور نہ مذہبی کوئی قانونی نہیں تھا۔ اب بہت بڑی سمسیا کھڑی ہو گئی کہ اتنی زیادہ عورتیں ہو گئی ہیں اور بچے بھی اب نہیں ہوں گے اور اتنے مرد مار دیے گئے ہیں۔ تو مجبور ہو کر کے انہوں نے مذہب کو بھی بالائے طاق رکھا، قانون کو بھی کنارے رکھا، اور سرکار نے نیا ایجنڈا پیش کر کے پوری دنیا کے مردوں کو آفر کیا کہ ہمارے پاس عورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آپ آئیے 2 3 جن سے بھی تعلق پیدا کریں، ہم کو بچہ پیدا کر کے دیں۔ تو ایک وجہ کیا ہوتی ہے جس کے اندر رحمت ہے کہ اگر کبھی، کیونکہ ہمیشہ جنگ جب ہوگی، اور جنگ ہوتی ہی رہتی دنیا میں، تو مارے کون جاتے ہیں؟ مرد مارے جاتے ہیں۔ جب مرد مارے جائیں گے تو تعداد کس کی بڑھے گی؟ عورت زیادہ بیوہ ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے 2 3 4 کی اجازت دی ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں تو ان سے نپٹنے کے لیے آپ کے پاس پریکاشن، پہلے سے قانون موجود ہو تاکہ مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اور بھی بہت سی وجوہات بیان کی جا سکتی ہے، بہرحال یہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ ٹاپک رکھا کہ 2 3 4 شادی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کل ایک بات آئی تھی کہ کبھی کبھی ضرورت اور فطرت وہ آپس میں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹکرا جاتی ہیں۔ تو ایک سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ فطرت کو تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی کوئی شوکن نہیں آوے، یہ اس کی فطرت ہے۔ کل میں نے اس پر بات کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر 4 شادی کی اللہ نے اجازت دی تھی تو شوکن کے دل میں یہ نفرت والی فطرت پیدا ہی نہیں کرتا تاکہ پرابلم ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ویلکم کہتی کہ اچھی بات ہے کہ آپ ہمارے شوہر کے ساتھ رہیں گی، دونوں مل کر کے مزے کریں گے، اور گھر میں جو ہے ایک اور عورت آ جائے گی تو دل نہیں گھبرائے گا۔ اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں اگر عورت یا شوکن کی فطرت میں نفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں نفرت رکھا کیوں؟ شوکن کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ اجازت دی نا 2 3 4 شادی کرنے کی، اور مردوں کی فطرت میں رکھ دیا کہ ان کا دل چاہتا ہے دوسری شادی کریں۔ بہت تھوڑے سے مرد ہیں کہ جو دوسری شادی کی طرف رغبت نہیں رکھتے ہیں، بقیہ ایک بڑی تعداد رغبت رکھتی ہے۔ اب یہ رغبت رکھتی ہے، اگر غور سے سنیں گے تب میری بات پکڑ پائیں گے۔ ایک طرف مردوں کی فطرت میں رغبت رکھ دیا کہ دوسری شادی کی تمنا رکھیں، دوسری طرف عورت کے دل میں نفرت رکھ دیا کہ شوکن کو پسند نہ کریں۔ اگر عورت کے دل میں شوکن کی نفرت کے بجائے محبت رکھ دیتا تو یہ دنیا اپنا بیلنس کھو دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر مرد چاہ رہا ہے، 65% تقریباً اندازہ ہے کہ مرد دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کرتے کتنے 65 میں سے؟ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4%۔ یہ 65% اگر عورت کی نفرت نہ ہوتی شوکن سے، یہ 65% اگر شادی کرنا چاہتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ اتنی عورتیں دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک امبیلنس ہو جاتی بات، بیلنس ختم ہو جاتا دنیا کا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ ہم نے اس دنیا کو بیلنس کے ساتھ پیدا کیا ہے، بیلنس ہے اس کے اندر، تو اگر اس کی نفرت نکال دے گا تو بیلنس کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ایک جو لوگ مرد لوگ ہیں شادی کی تمنا رکھتے ہیں دوسری،
बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन जब उनको पहली बीवी का रोब नजर आ जाता है तो ये अभी शादी भी नहीं किए हैं, इरादा ही अंदर है, बोले भी नहीं है, अंदर से कांपने लगते हैं। कल एक साहब ने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजा, मसला पूछा, सुनिए देखिए मसला कैसा है, होगा वो वीडियो उनका, कि एक साहब कह रहे हैं कि मैं सुन्नत अदा करने के लिए दूसरी शादी करना चाहता हूं ताकि मुझे सुन्नत का सवाब मिल जाए, लेकिन वो पहली वाली इतनी खूंखार है कि उसकी वजह से मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं करूंगा। आप मौलाना साहब ये बताइए कि वो इतनी खूंखार है कि वो इलाका गैर या बलूचिस्तान वगैरह की होंगी, कि ऐसा भी मुमकिन है कि वो रिवाल्वर और बंदूक उठाए और मुझे शूट कर दे, तो मैं शहीद हो जाऊंगा या नहीं? यानी मैं शहीद की कैटेगरी में दाखिल हो पाऊंगा या नहीं? अब आप देखिए, मतलब ये तो बड़ा दिल गुर्दे वाला आदमी है ना, मतलब सुन्नत को जिंदा करने के लिए, मरने के लिए क्या है, तैयार है अगर शहादत का मौका, शहादत का दर्जा मिल जाए। तो मैंने जवाब दे दिया उनको, हमने कहा आपको ये किसने बताया है कि दूसरी शादी करना सुन्नत है? आधी बात बताई गई है ना, पहली बीवी के होते हुए दूसरी करना सुन्नत कहां है? तो पहले पहली वाली को खत्म होने दो, उसके बाद ये तमन्ना करो दूसरी और तीसरी की। ये लोग औरतों को इस तरीके से बेवकूफ मर्द लोग बनाते हैं, कहते हैं दूसरी शादी में कर रहा हूं, ये सुन्नत है। आपको दूसरी शादी करने की इजाजत है, पहली बीवी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे चाहे कर लें, सारी बातें हैं। लेकिन ये याद रखें कि पहली के होते हुए जो है ना, वो सुन्नत नहीं है दूसरी शादी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा के होते हुए शादी नहीं किया है। जितनी शादी हुई हैं खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बाद में हुई हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब तक हयात थी, दूसरी शादी नहीं हुई है। तो मर्दों को ये जुमला भी याद रखना चाहिए, दूसरी शादी सुन्नत है, शर्त यह है क्या कि पहली न रहे, समझे नहीं? तो बहरहाल उनको मैंने ये जवाब दे दिया। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो बताना ये चाह रहा था कि शौकन के दिल में जो नफरत रखा, उसकी बुनियादी वजह यह है। एक चीज और अल्लाह ताला की रहमत है शौकन के बारे में। शौकन के बारे में आपको ये बात मालूम है कि इंसाफ करना जो है वो मर्द के लिए जरूरी है। अगर आपको इंसाफ का खतरा है फवाहिदतन, तो एक ही पर इक्तफा कर लो। फिर अल्लाह ताला बोलता है कि तुम इंसाफ कतई नहीं कर सकते हो, लेकिन कहता है कि इजाजत दे रहा हूं। सारी बातें नोट करें, लिंक देखें। कह रहा है इंसाफ करना लाजिम है। व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, अगर तुम्हें खौफ है कि तुम बिटवीन द वाइफ, औरतों के बीवियों के दरमियान में इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो कितनी शादी का मशवरा दिया जा रहा है? फवाहिदतन, एक करो। उसके बावजूद ये कह रहा है कि तुम हरगिज, दूसरी आयत में कहा गया है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। वहीं पर यह बात कह देनी चाहिए थे अल्लाह ताला को, क्योंकि तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो, लिहाजा जो मैंने परमिशन दिया था वो कैंसिल कर रहा हूं और अब एक ही शादी करना। लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा है इंसाफ नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमको परमिशन है। तो ये जो अल्लाह ताला ने कहा, ये उसकी रहमत है। जान रहा है इंसाफ नहीं कर सकते हो, फिर भी तुमको परमिशन दिया है, तो ये रहमत हुई। वरना तकाजा ये था कि जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, क़यामत तक हमेशा सारी बातों को जानने वाला है, वो जान रहा है कि बहैसियत शौहर के ये इंसाफ नहीं कर सकता है, लिहाजा इसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन परमिशन दिया है, ये मर्द के हक में रहमत है। कहा क्यों इंसाफ नहीं कर सकते हैं? बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें लिखी हैं। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, आपको एक बात बताता हूं। एक बीवी के पास आदमी आज गया,
बीवी के साथ रहा, जैसे रहना चाहिए, दोनों के ताल्लुकात हुए, सब कुछ हुए। दूसरे दिन वो उसी तरीके से दूसरी बीवी के साथ एंजॉय नहीं कर सकता। नामुमकिनात में से है कि दोनों बराबर हो। इस बात को अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम इंसाफ कभी नहीं कर सकते हो। यहां इंसाफ से मुराद संतरा नहीं है कि एक संतरा तुम इसको ला के दे सकते हो तो दूसरा इनको नहीं दे सकते। इसको दे सकते हो। 1 किलो सेब इनको ला करके दिया तो दूसरा किलो, ये सब इंसाफ मुमकिनात में से है। 2 चीज मुमकिन नहीं है, एक तो जो मैंने बात बताई, दूसरी दिल के मैलान को आप नहीं कर सकते हैं कि सारी बीवियों के साथ दिल का मैलान क्या हो, एक जैसा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह, मेरा दिल आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ ज्यादा रागिब है, लिहाजा मुझे इस रगबत पर मेरी पकड़ नहीं कीजिएगा। क्यों? दिल हमारे कब्जे में नहीं है। अल्लाह कहता है सारी दुनिया का दिल हमारी 2 उंगली के बीच पे रहता है, मैं जैसे चाहता हूं वैसे खेलता रहता हूं। लिहाजा इस बुनियाद पर कहा गया है कि इंसाफ नहीं भी कर सकते फिर भी परमिशन दिया तो मर्दों को ये अल्लाह ताला की रहमत महसूस होनी चाहिए। आखिरी बात कहकर बात खत्म करते हैं। जिन लोगों के पास 2 बीवियां या 3 बीवियां हैं, तो ये हमारे साथ भी पेश आया। हमारे वालिद ने 2 शादी की है, तो एक दिन कहने लगे हमसे, मैं उस वक़्त जमात दुआम या सुअम में पढ़ता था, कहने लगे कि ये जो तुम्हारी वालदा हैं या तुम्हारे भाई बहन यानी पहली बीवी के बच्चे, ये जो कह रहे हैं कि घर अलग कर दो, एक बीवी को दूसरे घर में रखो, दूसरी बीवी को दूसरे घर में रखो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो इसमें तुम्हारा नुकसान है। किसने कहा? वालिद मोहतरम ने कहा कि इसमें तुम्हारा पहली बीवी और बच्चों का नुकसान है। मौलाना एजाज अहमद साहब अजहरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे चचा जान, वो भी बैठे हुए थे, इत्तेफाक से मैं भी बैठा हुआ था। मैं अरबी जमात के दुआम या सुअम का तालिब इल्म था। तो मैंने कहा नुकसान क्या है? उन्होंने कहा देखिए, अगर मैं अपनी तनख्वाह को आधा आधा बांट दूं कि आधा पहली बीवी को दे दूं और आधा किसको दे दूं? दूसरी बीवी को, कि भाई तुम अपना खर्चा इसमें चलाओ, तुम अपना खर्चा इसमें चलाओ, तो तुम्हारे 8 भाई बहन हैं। कितने हैं? 8 भाई बहन हैं। तो 8 और 1 तुम्हारी वालदा मिलकर कितनी हो गई? 9। दूसरी वाली जो तुम्हारी वालदा है उनके 1 बच्चा है, तो उनका खर्चा 2 का रहेगा, तुम्हारा खर्चा 9 का रहेगा। तो इसलिए तुम्हारा नुकसान है, इसलिए मैं इसको अलग नहीं कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि ये जो आप बात कह रहे हैं शरई लिहाज से गलत है। मैं तीसरी में या दूसरी में पढ़ता था। मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, इस इल्म को ऐसा पढ़ो कि बाद में आपके ये काम आए। उस्ताद को उस्ताद बनाओ, सही बात समझने की कोशिश करो। अंधभक्त हो करके नंदी बैल की तरीके से उस्ताद के सामने सर नहीं हिलाओ। जो नहीं समझ में आवे उसको पूछो। ये अगर करेंगे तो उस्ताद खूब मेहनत करेगा तुमको पढ़ाने में और तुम बेहतरीन किस्म के आलिम बनोगे। और अगर तुम नंदी बैल की तरीके से पढ़ते रहोगे, जब कभी यहां से निकल कर जाओगे, कहीं पढ़ी लिखी महफिल होगी, तो तुम सोचोगे क्या मालूम नहीं किसने मुझे पढ़ा दिया है और कैसे मैं पढ़ करके आ गया। बहरहाल, तो मैं नंदी बैल की तरीके से मैं कभी पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने वालिद साहब से कहा, और वालिद साहब से जवाब देना, हुबली का कोई आदमी ऐसा नहीं था जो उनके सामने बात कर सके। इतना रोब था उनके चेहरे पर और इतना हुबली के लोग एहतराम करते थे और डरते थे, बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मैंने कह दिया, मैंने कहा कि ये मसला आप सही नहीं बता रहे हैं कि 1 को 9 का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे तनख्वाह 3000 है तो 1500 हम तुम्हारी अम्मी को दे देंगे, 1500 तुम्हारी दूसरी अम्मी को दे देंगे, तो 1500 में 2 आदमी का खर्चा होगा और 1500 में 9 का खर्चा होगा, तो 9 वाला क्या होगा? परेशान होगा। हमने कहा अब्बा जान, लड़के अब्बा के होते हैं, अम्मी के नहीं होते हैं। लड़के किसके होते हैं? अब्बा के होते हैं। 8 भाई बहन हम हैं,
200 रुपए के लिहाज से मिसाल के तौर पर निकालो तो 1600 रुपया पहले इनको निकाल दो, ये अम्मी के हाथ में दे दो, और 200 रुपया दूसरी अम्मी के हाथ में दे दो, क्योंकि उनके एक ही लड़का है। तो 1600 रुपए ये हो गए, 200 रुपए कितने हो गए? 1800 रुपए। अब आप 3000 आपके तनख्वाह बचे 1200, 600 रुपए दोनों बीवी को दो, तब इंसाफ होगा। आप भी यही समझ रहे थे कि अगर 2 बीवियां हैं तो आधी आधी तनख्वाह बांट देंगे, बड़ा इंसाफ हो गया। ये अल्लाह की रहमत है, उसने बाप की तरफ बच्चे को निस्बत में रखा, मां की तरफ निस्बत नहीं रखा, ये उसकी बड़ी मसलहत है। बात मेरी समझे? तो इस तरीके से रब्बे दुजलाल ने इस दीन को दीन रहमत बनाया है। आप फख्र करें अंदर से कि अल्लाह ताला ने ये दीन जैसी नेमत दुनिया में भेजी और हमको उसके अंदर क्या कर दिया? पैदा कर दिया बगैर कोशिश के, बगैर एप्लीकेशन दिए हुए। ये हमारे रब्बे दुल जलाल का एहसान है। हम उसके एहसान को महसूस करते हैं, और जितना आप इसमें गहराई में जाते जाएंगे उतना आपको लगेगा कि मालिक तेरा कितना रहम है, तेरा कितना करम है कि तूने ऐसे ऐसे कानून बना करके पूरी दुनिया को इस तरह चलाया। इंशाल्लाह जिंदगी तो हम आगे बात करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।